We are also joined by officers from Ministry of Finance and Commerce. So today we'll begin with updates from the Ministry of Finance. I would request Member CBIC, Mr. Sanjay Mangal, to give the updates. Yeah, good afternoon, friends. I would like to give some updates about the measures taken yesterday about reduction of duties on certain items of petrochemical sector. In the light of ongoing conflict in West Asia and the consequent disruptions in global supply chains, Government of India has decided to provide full customs duty exemption on critical petrochemical products for a certain period, for a period of 3 months about, till 30th June 2026. This measure has been taken as a temporary and targeted relief in order to ensure continued availability of critical petrochemical inputs for domestic industry, reduce cost pressures on downstream sectors, and safeguard supply availability in the supply stability in the country. This exemption is expected to benefit a large number of sectors which are dependent on petrochemical feedstock and intermediate products, which includes plastics, packaging, textiles, pharmaceuticals, chemicals, automotive components, and other manufacturing segments. This will also provide relief to consumers of final products. The expected or the calculated revenue loss arising out of these measures for the period of 3 months is about rupees 1,800 crore. While we are considering this revenue loss, we have to take into account that this has been calculated on the basis of the past trends, and considering the present fluid situation, the exact amount of revenue impact cannot be forecasted in that manner. I will also like to mention that while this decision has been taken, widespread consultations have been conducted with the concerned ministries, who have further consulted their individual sector industries and trade. And after that, the concerned products on which are considered to be critical for downstream industries and for different sectors, they have been identified, and the duty on all these products for a temporary period of 3 months has been reduced to the customs duty has been reduced to 0. So it is expected that this will ensure more price stability for these sectors, and also improve the supply chains, and will help in continued production of these critical products. Thank you. Thank you. Now I request Mr. Love Agarwal to make his presentation. So you can start with. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस प्रेजेंट क्राइसिस में डिपार्टमेंट की तरफ से क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और उससे संबंधित डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है वो आपको बताना चाहेंगे। हम सबको मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारा समुद्री मार्ग है वह हमारे लिए कितना ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। विश्व का 20% क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी उस रास्ते से जाता है। इंडिया के संबंध में अगर हम देखें तो 45% हमारा क्रूड इंपोर्ट और 90% हमारा एलपीजी इंपोर्ट नॉर्मली इस पैसे से पास होता है। तो इस समय पर जबकि कुछ पोर्ट्स काफ़ी क्लोज हो गए हैं, और साथ में जब ये पोर्ट्स क्लोज होते हैं तो उससे एक एडिशनल चैलेंज हमारे लिए आता है कि यूरोप या यूएस बाउंड जो हमारा कार्गो है उसको भी लॉन्ग रूटिंग करनी पड़ सकती है। इस टाइप का चैलेंज इस समय ट्रेड की तरफ से हम लोग फेस कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा काफ़ी विस्तृत, एक काफ़ी डिटेल्ड रूप से हमारी एक ट्रेड एक रिलेशनशिप हमारी बनी हुई है। अगर हम देखें तो 178 बिलियन ट्रेड अगर 2024-25 की थी, जिसमें से कि 56 बिलियन के करीब हमारा वहाँ पर उस एरिया में एक्सपोर्ट था। तो उस समय पर जबकि जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है आपको कि चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ओमान हो, हर कंट्री के साथ हमारा एक डिटेल्ड ट्रेड रिलेशन, एक बहुत डेप्थ में होने वाला ट्रेड रिलेशंस है। तो हमने देखा कि जब यह चैलेंज हम सब लोगों के सामने आए तो कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिकली प्रभावित हो सकते हैं,
जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, एग्रीकल्चर प्राइमरली राइस, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड प्लास्टिक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और इसी से संबंधित अगर हम उस सेक्टोरल इम्पैक्ट को देखें तो हम पाते हैं कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में काफ़ी एक स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोगों ने महसूस किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर में जैसे पेरिशेबल हो सकते हैं, बासमती, उनके पेमेंट चैनल, उनके क्रेडिट साइकिल इम्पैक्ट हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र से जो कि हमारा यूरिया अंडर स्ट्रेस आ सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग गुड्स में हम जो कि हमारा ये गल्फ एरिया हमारा लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कैटेगरी है और ये हमारी एक की मार्केट है, तो वहाँ पर भी हमारे को वेसल रूटिंग से हमारे ट्रांजिट डेज वॉरेज सरचार्ज से हमारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। जेम एंड ज्वेलरी हम आप सबको बताना चाहेंगे नॉट ओनली हमारे लिए एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारे लिए एक सोर्सिंग हब भी है, तो वहाँ पर हम चैलेंज महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी, और उससे रिलेटेड हमारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं। सिमिलरली केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल ये सेक्टर हैं जो कि इस समय स्ट्रेस में आ सकते हैं। ऐसे समय पर जब ये चैलेंज हम लोग के सामने था तो ज़रूरी था कि हम कुछ फैसिलिटेशन मेजर स्टेट के लिए लेकर आएँ, तो उससे संबंधित मैं आप सबको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे ही ये चैलेंज हम सब लोगों के सामने आए तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का 2 मार्च को ही हमने गठन किया, जो कि एक प्रोएक्टिव वे में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम लोग कैसे एक चैलेंज को एसेस करें और उसको ट्रेड के इम्पैक्ट को कैसे जो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और रेलवेज, इन सबसे संबंधित अधिकारियों के द्वारा हम लोग प्रतिरोज सुबह 10 बजे मिलते हैं और एक रियल टाइम इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कार्य करने के हम प्रयत्न करते हैं। अब तक करीब 20 से अधिक मीटिंग इस पर्टिकुलर इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा की जा चुकी हैं। एक फोकस सब ग्रुप, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स भी इस पर्टिकुलर एरिया में जाती हैं, तो एक फोकस सब ग्रुप हम लोगों ने बनाया जो कि पेरिशेबल कार्गो मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट कराता है, ट्रेड के साथ बात करके उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से हमने वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए एक डेडिकेटेड डेस्क का भी गठन किया है, जिसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है मंत्रालय की तरफ से और एक ईमेल है जिसमें कि हमारे सभी संबंधित जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, अगर उनको कोई भी चैलेंज होता है वो हमें बताते रहते हैं। और इसी के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलते हुए हम जितनी भी हमारी कॉमोडिटी मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पेट्रोकेमिकल हो या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, हम उनसे कोऑर्डिनेट करके कॉमोडिटी लेवल स्ट्रेस को समझते हुए उससे रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी मेरे सीनियर कुलीग ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से साथ मिलते हुए अब तक काफ़ी कार्य किए जा चुके हैं, चाहे वो रिटर्न कार्गोज रिलेटेड सपोर्ट हो, चाहे वो कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटेशन कमेटी हो, इस सारे कार्य को इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा हम लोग उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। इसी तरह पोर्ट्स के द्वारा SOPs, जैसे कि मेरे कुलीग आज आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, चाहे कार्गो हैंडलिंग हो, पेरिशेबल की हैंडलिंग हो, वेवर हो, उससे रिलेटेड कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट को देखें तो एक्सटर्नल अफेयर से मिलते हुए हम लोग गल्फ पोर्ट अथॉरिटी से कार्गो फैसिलिटेशन का कार्य कर रहे हैं। पेट्रोलियम में हमारा इमरजेंसी सेल एक्टिवेटेड है, जो कि आपको डेली उसके बारे में बताया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हम बैंक और इंश्योरेंस के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। रेलवेज की तरफ से मिलते हुए हमने कॉनकोर और इनलैंड कंटेनर डिपोज के साथ कार्य किया है, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरनल मूवमेंट विद इन देश हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकें, और पर्टिकुलरली जो हमारे स्ट्रैंडेड एक्सपोर्ट्स थे, कंटेनर्स थे, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप के तहत कार्य करते हैं। और रिजर्व बैंक, जैसे कि आप सबको अवगत है, पिछले 2 दिनों में ही कई सर्कुलर इशू किए गए हैं, जिससे ट्रेड को, चाहे वो जो क्रेडिट पीरियड है उसकी समय अवधि, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट की समय अवधि बढ़ाई गई है। इसी तरीके से पैकिंग क्रेडिट जो है उसमें लिक्विडेशन उस क्रेडिट का हम ऑल्टरनेट सोर्सेज के द्वारा कर सकें या डोमेस्टिक सेल के द्वारा कर सकें, उससे रिलेटेड एग्जम्पशन दी गई हैं। इसी समय पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कुछ की इंटरवेंशन ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए किए गए हैं। आप सबको अवगत है कुछ स्कीम्स जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड, इन स्कीम के द्वारा हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करते हैं, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं और उसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है इनपुट्स का, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। ऐसे समय पर उसकी समय अवधि को, एक जो उसका एक पीरियड होता है, उसको हमने 3 महीने
क्योंकि हमारे को एक्सपोर्ट कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट आई थी, तो उसको बढ़ाया गया है कि वे 3 महीने की अधिक अवधि में भी अपना एक्सपोर्ट कमिटमेंट फुलफिल कर सकते हैं। कोई लाइसेंस या कोई एडिशनल पेनल्टी पे नहीं करना है, जिससे कि उनको फ़ायदा हुआ कि उनकी सप्लाई चेन बनी रहे, उनके शिपिंग डिसरप्शन के समय में जो डिलेज हैं वो मैनेज कर सकें, और साथ ही उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी को हर्ट ना हो। इसी तरह से हमारी एक मुख्य स्कीम है जिसको हम रॉटेप कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जितने भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल टैक्सेस होते हैं जो कि किसी और स्कीम में रीइंबर्स नहीं होते, लेकिन अगर वह एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको सरकार रीइंबर्स करती है। उसमें जिस फरवरी के समय में उन टैक्सेस का परसेंटेज घटाकर 50% किया गया था, लेकिन जब ये वॉर की सिचुएशन हम लोगों के सामने आई तो उसको हमने 23 मार्च से फिर से रिस्टोर किया, जिससे कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो राइजिंग फ्रेट, इंश्योरेंस या इनपुट कॉस्ट के चैलेंज को जब अगर वो इस समय मैनेज कर रहे हैं तो उनकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी और वो ग्लोबल ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक वर्किंग कैपिटल, जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि प्रति एक्सपोर्टर को एक समय अवधि दी जाती है जिसमें कि वो अपना एडवांस ऑथराइजेशन या जो EPCG स्कीम के अंतर्गत अपने एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा करे, और उसके पूरा होने के बाद वह अपनी जो वर्किंग कैपिटल की बैंक गारंटी उसने प्रोवाइड की है उस पर्टिकुलर बैंक गारंटी को डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो हमने इस समय पर एक ड्राइव ली और 12,000 एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स को पिछले 1 महीने में इशू किया गया, जिसके द्वारा ब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल हमारे एक्सपोर्टर्स के पास फिर से अवेलेबल होगी ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यूटी और री इन्वेस्ट कर सके नए ऑर्डर्स में। वाइल ये सारे कार्य जब किए जा रहे थे, इसी तरह जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया, उसमें उनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड भी हमने 1 माह की अवधि से बढ़ाया, जिससे कि हमारे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को उनके एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्दीनेस बैंक्स के साथ बनी रहे, और हम एक पर्टिकुलर, जैसे आज भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कट एंड पॉलिश डायमंड हब के रूप में अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह से हमारी एक और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में हम अपेडा कहते हैं, उसने हमारी तरफ से एक एक्सपोर्टर्स की हेल्पलाइन को इस्टेब्लिश किया। मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स पर्टिकुलरली पेरिशेबल्स और बासमती राइस, मीट और पोल्ट्री के लिए उन्होंने एयर कार्गो ऑपरेटर्स के साथ और शिपिंग लाइन के साथ कंटिन्यूड मूवमेंट ऑफ कार्गो, उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी वे प्रतिरोज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही बासमती एक्सपोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट, उसकी अवधि को भी 45 दिन बिना कॉस्ट के बढ़ाया गया। इसी के साथ ही वह, जैसे इससे पहले भी आपको हमने बताया कि वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट को भी एक्सपोर्टर्स के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बनी रहे गल्फ एरिया में, क्योंकि वह हमारा एक मेजर डेस्टिनेशन है। और साथ ही शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर डैमरेज कॉस्ट हो या ऑल्टरनेट पोर्ट्स का या UAE या ओमान सर्विस रूट हो, उसको भी हमने इस्टेब्लिश किया है। इसी के साथ ही एक बहुत ज़रूरी था कि जब इस समय पे हम अपने एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा दे सके, एक नई स्कीम डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की हुई। इसके बारे में बताना चाहेंगे। इस स्कीम को हम रिलीफ नाम बताते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इस स्कीम को डिपार्टमेंट के द्वारा 19 मार्च को लागू किया गया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक इकोसिस्टम अप्रोच से हम एक्सपोर्ट को देश में बढ़ावा दें, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेड की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो हमारे एक्सपोर्टर्स उनका कॉस्ट बर्डन कम होगा, उनको एडिशनल रिस्क कवर मिलेगा, उनकी सप्लाई चेन्स बनी रहेंगी। और पर्टिकुलर फोकस है कि हम मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमने इस स्कीम को, इसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट कवर करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने, जब यह वॉर शुरू हुई तब ऑलरेडी एक उन्होंने इंश्योरेंस कवर उसमें ECGC के द्वारा लिया हुआ था। तो नॉर्मल समय में जब आप ECGC कवरेज लेते तो 80 to 85% आपका रिस्क कवर किया जाता है, लेकिन इस स्कीम के कंपोनेंट के द्वारा हमने उन पर्टिकुलर केसेस में उसका कवर बढ़ाकर 100% किया है। यानी कि चाहे वॉर हो, चाहे पॉलिटिकल रिस्क लॉसेज हो, कोई भी लॉस अगर उस केस में जो पर्टिकुलर हमारे देश से कंसाइनमेंट उस पर्टिकुलर टेरिटरी में गए हैं 14 फरवरी से 15 मार्च तक, उन पर्टिकुलर एक महीने की अवधि में जो भी हमारे कंटेनर हों, चाहे वो फुल कंटेनर लोड हों
चाहे लेस देन कंटेनर लोड हो, चाहे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हों, उन पर्टिकुलर कंटेनर्स को हम, अगर उन्होंने पहले से ईसीजीसी कवरेज लिया है तो उसको 100% ईसीजी कवरेज हम कवर करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एयर बिल हो या बाय शिपिंग हो, दोनों को कवर किया गया है। इसी के साथ ही जो 11 देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन, यहाँ जाने वाला जो हमारा कार्गो है या इस पर्टिकुलर एरिया से जाकर किसी और दूसरे देश में जाने वाला कार्गो है, दोनों को हमने कवर किया है। और इसके द्वारा हम उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स को जो कि उनका जो कार्गो निकल चुका था जब वॉर शुरू हुई, उसको हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरे कंपोनेंट में हम अभी अपने जितने एक्सपोर्टर्स उनको कह रहे हैं कि जब आप अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक इंश्योरेंस कवर के थ्रू आगे बढ़ें और उसके लिए आप नया ईसीजीसी कवर ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ईसीजीसी से बात करते हुए स्टैंड अलोन पॉलिसीज़ का एक गठन किया है, जिसमें अगेन एयरवे बिल और कार्गो, शिपिंग कार्गो को हमने कवर किया है। यह जो कवर है आने वाले 3 महीनों यानी कि 16 मार्च से 15 जून तक जो भी कार्गो उस पर्टिकुलर प्रांत में जाता है, चाहे वो इन देशों को जा रहा हो या इस एरिया के द्वारा पास हो रहा हो, उसको कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 महीने अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में अगर अपना चाहे ट्रांसशिपमेंट हो, जो एक्चुअल पर्टिकुलर इस एरिया के लिए कवर्ड एक्सपोर्ट हो, तो उसको हम कवर करते हैं। प्रीमियम ईसीजीसी द्वारा बढ़ाई नहीं जाएगी, प्रीमियम वहीं पर लिमिट की जाएगी, कैप की जाएगी, लेकिन जो इंश्योरेंस कवर है उसको बढ़ाकर हम 95% करेंगे। और जो भी एडिशनल अगर ईसीजीसी को पेमेंट करना है अपने रेगुलर कवर के अलावा, उसको गवर्नमेंट पे करेगी। तो यह हमारा दूसरा कंपोनेंट है जिसमें हमने आने वाले एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई है। तीसरा कवर था कि कुछ ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने उस समय पर एक्सपोर्ट किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने ईसीजीसी या कोई इंश्योरेंस कवर ना लिया हो। अब ऐसे समय में जब वॉर हुई और उनको एक सडन चैलेंज फेस करना पड़ा, और हम सबको पता है चाहे वॉर रिस्क सरचार्ज हो, चाहे इमरजेंसी कंटेनर सरचार्ज हो, चाहे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम हो, उससे संबंधित अगर उनका जो भी एडिशनल कॉस्ट है उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए, पार्ट कवर करने के लिए यह स्कीम को बनाया है, इस कंपोनेंट को बनाया है। इसमें 2 तरह के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, 2 तरह की ट्रेड में डील्स होती हैं। एक होती है CIF, जिसमें कि हम अगर उनका एडिशनल फ्रेट या इंश्योरेंस बर्डन जो भी है उसका 50% तक बियर करते हैं। और दूसरी फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, FOB कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पर अगर उनको अपने जो इंपोर्टर है वहाँ से रियलाइजेशन में कोई कमी हुई, उसका 50% तक हम कवर करेंगे। यहाँ मुख्यतः हम आपको बताना चाहेंगे कि यह स्कीम केवल MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने लागू की है। और इसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी एक्सपोर्टर्स को इसका लाभ मिले और पर्टिकुलर एक एक्सपोर्टर तक ना सीमित रहे, तो इसके लिए हमने ओवरऑल सीलिंग भी जो है 50 लाख रुपए प्रति एक्सपोर्टर एक लिमिट फिक्स की है। और इसमें भी हम ट्रांसशिपमेंट और उस पर्टिकुलर प्रांत में जाने वाले सभी जितने भी हमारे शिपमेंट हैं उनको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीम हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने एक्सपोर्टर कम्युनिटी से कि प्लीज़ इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं और इंश्योर करें कि हम अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से ओवरऑल अप्रोच आप लोगों को बताना चाहें तो हमारे 3 बेसिक एफर्ट्स हैं। पहला एफर्ट है कि हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कोऑर्डिनेट करते रहें, जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने अभी बताया आपको, अगर देश की सप्लाई चेन, देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, तो चाहे उसके लिए ड्यूटीज़ को क्रिटिकल रॉ मटेरियल में कम करना पड़े, चाहे इसेंशियल इनपुट में कम करना पड़े, तो हम डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। चाहे कोई ट्रेड रिलेटेड प्रोसेसेस हों, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, उसमें कोई रिलैक्सेशन देनी हो, उसका हम कार्य करें और हम अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी पर कार्य करें। दूसरा एफर्ट हमारा है कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल को बनाए रखें और उसके लिए जो भी हमारे पर्टिकुलर कार्गो हैं जिसमें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में कोई चैलेंज आ सकता है, तो हम सेंसिटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करें और उसमें चाहे हमारे को प्रमोशन रिलेटेड कोई कार्य करना पड़े अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, चाहे देश में अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़े, हम उससे रिलेटेड कार्य करेंगे। और तीसरा और सबसे मुख्य है, क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो हम रेगुलर कम्युनिकेशन अपने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा कम्युनिटी से बनाए हुए हैं, डोमेन मिनिस्ट्री से बनाए हुए हैं, और साथ ही जो हमारी ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं और ट्रेड रेमेडी मेजर्स हैं, उससे हम देश के एक्सपोर्ट की कंटिन्यूटी बनाए रखने का एफर्ट करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Now I request Sujata.
Petroleum Ministry updates. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप हैं। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशेंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसिडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीज़ल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइसेस आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। लगभग 95% रिफ़िल बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और लगभग 85% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो वो पीएनजी सरेंडर करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि एक पोर्टल है mypngd.in। इस पोर्टल पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,400 लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रिफाइनरीज़ के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 9 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया गया जिसके द्वारा C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटीन सम्मिलित हैं, को एलपीजी पूल में डाइवर्ट करने की बात की गई। किंतु अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से प्राप्त रिक्वेस्ट्स के आधार पर CHT को की एक कमेटी बनाई गई है और उसका काम है कि अगर कुछ एलपीजी मॉलिक्यूल्स को अगर डाइवर्ट करना है तो वो कितना करना है, इन सभी डिपार्टमेंट से बात करने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल सप्लाईज़ को लगभग 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, कैंटीन
सब्सिडाइज कैंटीन, स्टेट रन कैंटीन को प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को देने की भी बात की गई है, प्रायोरिटाइज करने की। इस संबंध में लगभग 23 मार्च से लगभग 4,30,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। कुछ इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम इसमें वी आर लुकिंग इनटू द मैटर दैट हाउ टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर सिस्टम। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 14 मार्च से लगभग 60,000 टन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को दी गई है। स्टेट्स ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसा मैं कहती आई हूँ, बहुत अहम रोल है और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रेड्स जारी हैं। कल भी लगभग 2600 रेड की गई, लगभग 700 सिलेंडर भी सीज़ किए गए। इसके अलावा रिसेंटली एक जगह पर हैदराबाद में ग्रेवयार्ड के अंदर भी लगभग 400 सिलेंडर्स मिले। वहाँ पर 10 लोगों को पकड़ा गया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह कल रात सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही थी कि मिरांडा कॉलेज में कुछ छात्राएं एजिटेशन कर रही हैं क्योंकि एलपीजी का इशू है। जब हमने इसकी तहकीकात की तो हमने पाया कि एलपीजी शॉर्टेज वाज नॉट एन इशू एट ऑल एंड इट वाज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड। इसी तरह कुछ टीवी चैनल्स में भी कुछ न्यूज़ आई है। दे आर ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन and actions will be taken as per the investigation report. PSU ऑफिशियल्स को भी डायरेक्ट किया गया है कि जो उनका सिस्टम है सरप्राइज इंस्पेक्शन का उसको स्ट्रेंथन करें और अगर कोई भी केस ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग का मिलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने लगभग 600 शो कॉज नोटिस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए हैं और लगभग 18-19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा देशवासियों को कहना चाहूँगी कि सप्लाईज पर्याप्त है, कृपया आवश्यकता अनुसार क्रय करें और पैनिक बाइंग से बचें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now I would request Ministry of Shipping to give the updates. Good afternoon. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to closely monitor the evolving situation in West Asia region. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in the past 24 hours and the situation remains stable with respect to Indian vessels. A total 18 Indian vessels with 485 Indian seafarers continue to remain in the Western Persian Gulf region. The Directorate General of Shipping, that is DG Shipping, in coordination with ship owners, RPSL agencies and Indian missions is actively monitoring the situation. The DG Shipping Control Room remains operational 24/7 and has handled a cumulative of around 4,900 calls and over 10,000 emails since activation, including 116 calls and 335 emails in the past 24 hours. DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 975 Indian seafarers so far from the region, including 11 in the last 24 hours. Post operations across India remains normal with no congestion reported in the past 24 hours. State maritime boards of Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala, Andhra Pradesh and Puducherry have confirmed smooth functioning of the ports under their administrative control. The ministry continues to maintain close coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer safety, welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you. Now Randirji, ME. Good afternoon, friends. I would like to update you on our Indian nationals in in Iran, as we have kept you updated with details in regard to our nationals being able to, how our embassy is facilitating their movement from Iran into Azerbaijan and
Armenia. In that regard, I have an update. So far, we have facilitated 1,200 Indian nationals, which includes 845 Indian students, to exit Iran via the land border into Armenia and Azerbaijan. Of these, 996 crossed over into Armenia and 204 into Azerbaijan. Over and above, we have also relocated several Indian nationals to safer places in Iran in the last few days. We also thank the authorities in Armenia and Azerbaijan for their support in facilitating the safe transit of Indian nationals from Iran. Thank you. Naseem ji. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and West Asia region, ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our highest priority. To support Indian nationals and their families, a dedicated special control room in the ministry is operational. We continue to be in regular touch with the state governments and union territories to keep them informed of the latest advisories and to coordinate with our embassies and consulates. Our missions and posts across the region continue to operate round-the-clock helplines and remain actively engaged with the large number of Indian community organizations, associations and Indian companies across the region. Regular advisories are being issued with updated information for our nationals, students, seafarers and resident Indian communities. Our missions remain in close touch with the local governments. They are proactively addressing issues being faced by Indian nationals, including facilitation for visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where airspace restrictions apply, and providing logistical support wherever needed. Welfare of Indian students in the Gulf countries is of high priority for us. Every effort is being made to ensure that students' academic year is not impacted. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, CBSE, ICSE, Kerala boards, and for JEE and NEET examinations with the National Testing Agency to address concerns of students. Our missions are also in continuous contact with Indian crew members on vessels across the region to ensure their welfare. They continue to provide support to them, including coordination with local authorities, extending consular assistance, facilitating communication with their families in India, and facilitating requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 624,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 90 flights are expected to operate from UAE to various destinations in India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating the travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. In an attack yesterday in Al Quwain in UAE, an Indian national was injured and is currently receiving treatment at a local hospital. Our consulate is extending all assistance to the injured Indian national. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. Yes, first row, 208, 16 and 24.
Hi, Sukalp from the Indian Express. First question is to Sujata ma'am. Ma'am, with the ATF price cut, not the price cut, sorry, with the partial pass on of the price, could you help us with what would be the current under recovery level on ATF for OMCs for domestic flights? And also, is there a plan that the government is working on supporting the OMCs, since they're also incurring heavy under recoveries on petrol, diesel, as well as domestic LPG? Second question to Kandhari sir. There's a bit of a confusion regarding the SAED that was imposed on diesel and ATF exports last week. If you could, sir, please clarify whether that applies to Reliance Industries Limited's SEZ refinery. Whether exports from the SEZ refinery are also going to be taxed. And third question to Mangal sir. This vessel that is purportedly carrying Iranian crude is its AIS signals show that it's now very close to Gujarat. So if you could give us some sort of a confirmation whether that's indeed coming to India. Thank you. Thank you for letting me ask a question. I'm Dvesh from Economic Times. So there have been some reports that 3 Indian vessels carrying defense-grade steel were on their way to Israel and they have been intercepted in Italy. Can we please get some official confirmation or denial on this? First row. Good afternoon, I'm Nikul from Reuters. My question is to Mr. Agarwal. Sir, in the presentation you made under the sectoral impact assessment, it said that payment channels have been impacted in key markets. So could you elaborate how our payment channels have been impacted and how are payments being undertaken currently? 46, second row, 46. असीम मनचंदा CNBC आवाज़ से सुजाता मैम से क्वेश्चन है। मैम, अभी आपने पेट्रोल और डीजल के अंडर रिकवरी का जिक्र किया। पेट्रोल में 24 की अंडर रिकवरी है और डीजल में 104 की अंडर रिकवरी है। तो अगर जब हम क्रूड को रिफाइन करते हैं तो दोनों में पेट्रोल और डीजल सेम मात्रा में निकलता है। तो व्हाई इट इज़ बेंचमार्क टू सम दुबई और सम ओमान टू कीप सो मच अंडर रिकवरी सो हाई? 24 and 70. Hi, Pallavi from Informist Media. My first question would be, how long before India resends LPG ships for refilling? And second question is on lines of what Sukalp has already asked. How do you see OMCs managing the financial impact of not fully passing on the prices of ATF to domestic airlines? Okay, in the first row, 46 has come. We can take first row here again. Hi, thank you. A couple of questions. Amar Zaidi from PTA. One for Sujata ma'am. You talked about polypropylene being made available to petrochemicals and other sectors. And I understand the ministry has already passed an order last evening for making available polypropylene. Will it impact LPG production, and how much of polypropylene is being diverted for that? One. Second question to CBIC. What is the impact of the SEZ order that was issued yesterday? Revenue implications for that as well. Thank you. Okay, we'll take 17 and 49 and then we can have the answer. Thank you. I'm Anil Honda. Two questions. One man on the ethanol blending. Is the ministry thinking of reviewing the percentage of ethanol blending in petrol? And second, on the currency volatility, if you could give some further inputs on how you want to control the price. Hi, my name is Aishwarya. I'm from Business Today. My first question is to Mr. Love Agarwal. So you mentioned that the ministry has been holding consultations with the industry for the past 20 meetings. If you can talk to us about the overall quantum in terms of export and imports that is estimated, that has been hit. If you can name some of the biggest hit industries, and what is the quantum of the export and import, if there are any figures. Also for Sujata ma'am,
I have a question on ATF. What is the effect on the pricing for some of the cargo carriers? And there's some confusion on that. If you can get some clarity for this. I think we have one more hand, 47. Ma'am, just one more question for Sujata ma'am. Last question. Ma'am, as far as India's strategic reserves are concerned, there was, you had clarified that India has 60 days plus 9.5 days of SPR. Considering the ongoing situation, has India thought of increasing its SPR in the future to avoid any such calamities? Because this is one of the lowest SPR reserves in the world. So, any answer on that? 47 and then 266. मैं सुरेंद्र पंडित हूँ पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल असीम सर से है। सर, इस समय ना देश में हज यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही, क्या इस सिचुएशन में हज यात्रा होगी? Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from The Hindu. Question to Randhir sir. The other day we had we had a televised thing coming in from US President Donald Trump, and there was a retort from Iran as well. So how are we looking at that situation as of now, and are we looking to place in any kind of mechanisms to safeguard ourselves against the constant retort that's happening? I think we'll begin the answers from Sujata. We'll begin from you. Yeah. So, regarding strategic reserve, yes, it is under very active consideration. What best could be done, and we will inform you at the appropriate time also. Regarding crude and the pricing, MS and HSD, and why it is linked to certain benchmarks, this is a standard way of calculating, and this is also a system of introducing the most efficient way of pricing. So what is the price at which the world is producing and selling, and what is the price at which you are able to sell? So that's the short answer of this. LPG, yes, you know that we are in a war situation and 60% of our supplies are affected. And precisely to protect the domestic consumption, on 9th March it was decided that not only the LPG production will be increased, but it will be used for the domestic consumers. But then there are certain other sectors which also need some of these molecules, and thereby this decision has been taken. And there will be an impact on the supplies available for domestic, but it will be ensured, and it has been ensured, that although the supplies to the domestic consumers are not affected, you just heard it is told that duties have been reduced on some of the petrochemical products. I hope things will, I'm very, very hopeful it will all, give very good results to us. Ethanol blending, you know that we have already reached 20%, and it has its own merit in terms of giving us better energy security, reducing import dependency, and for further increase, it's a policy decision, and it will not, I will not be able to comment it right now. So whenever the decision will be taken, it will be informed. Right now we are having a 20% blending. ATF under recoveries are there because you know that it has been only a partial increase. The figures, what will be the quantum, I am not having it right now. Petrol and diesel also, there is an under recovery, but I want to tell you that the highest priority for Government of India at this moment of time is to ensure supplies to the consumer in the country. Thank you. I cannot say it right now. Thank you. We can have response from Shipping Ministry. As you know that we are coordinating with Ministry of PNG and
for bringing the energy vessels from the west side of Strait of Hormuz. And as regard to this vessel, about this having Iranian oil, we do not have any specific information about this. Thank you. There was a question about whether the special additional excise duties and the additional excise duties RIC are applicable on special economic zones. As per judicial pronouncements on this issue, the special additional excise duty and additional excise duties are not applicable on special economic zones. For the next question on the SEZ to DTA, my senior colleague will answer. Regarding the question of revenue impact of this new exemption notification for DTA clearances by SEZ units, I would like to say that you take a look at it in this manner, that this measure has been taken to allow SEZ units to utilize their capacity in a better manner and to make some clearances, some additional clearances to DTA units, which they could not export because of trade disruptions. And for that, some concessional duty has been given. So if you say, look at the revenue impact, it is going to be additional DTA clearances, and there will be some duty which will be coming, while there simultaneously is a concession on duty vis-a-vis the present rates. So in that sense, no revenue impact can be calculated for that as such. There is some additional duty and there is some concession. So net impact cannot be analyzed at this stage, as we do not know what will be the total DTA clearances because of this exemption. Thank you. जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि जब कोई वॉर या इस टाइप के चैलेंजेस होते हैं तो जो पेमेंट चैनल्स हैं वो स्ट्रेस में आते हैं और साथ ही क्रेडिट साइकिल इम्पैक्ट होता है। तो ये हम सबको पता है कि कोई पेमेंट के डिलेज हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। आपने कोई एक्सपोर्ट किया, आपका एक्सपोर्ट अगर डिले से पहुंचा और वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंपोर्टर ने कोई डिडक्शन की, तो उस टाइप के चैलेंजेस इस टाइम ट्रेड फेस कर रही है। और इसी के लिए हमने आपको बताया था कि जब हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को किस टाइप की एडिशनल रिलैक्सेशन या किस टाइप का सपोर्ट इन कोऑर्डिनेशन कस्टम्स एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर दे पाएँ, ताकि उनका ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे। तो यह हमने आप लोगों को बताया था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जैसे आपने पूछा कि इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ओवरऑल क्या होगा, तो यह हम सबको पता है कि इट इज़ एन इवॉल्विंग सिचुएशन, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि जिस टाइप की हमारी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है इन द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमारा ट्रांसशिपमेंट भी काफ़ी क्वांटिटी में होता है, तो यह एक्सपेक्टेड है कि ट्रेड डेफिनेटली कोई ना कोई एक चैलेंज हम मेजर लेवल पर फेस कर रहे हैं। और उसके लिए ही हमने आपको दिखाया था कि चाहे वो हमारी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, मरीन प्रोडक्ट्स हों, हमारे मीट प्रोडक्ट्स हों, इंजीनियरिंग गुड्स हो, केमिकल्स हों, और इवन एनर्जी सेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रेस है और उसी के लिए उसको ईज करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारा उस पर्टिकुलर रीजन में डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ ट्रेड रिलेशन इज़ वेरी हाई, तो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली एनी चैलेंज इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल हैव ए इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि हम उसको कैसे मैनेज करें, उसमें अपने एक्सपोर्टर्स को हम कैसे सपोर्ट करें ताकि वे अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएँ। There was a question on the annual Hajj pilgrimage. I can inform you, like every year, preparations are ongoing for the Hajj pilgrimage in 2026. Our consulate in Jeddah and our embassy in Riyadh are working in close coordination with the Ministry of Minority Affairs, the Saudi Ministry of Hajj, and all concerned agencies for the preparation this year. We will keep you informed in this regard. Thank you. Randeep ji, you have to add something?